control unit design. Okay, control unit design. See, in microprogram control unit design, I'll show you this design first and then we will go back to the theory part. See this. हमारे पास लेट से, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, हमारे पास लेट से दो हाइपोथेटिकल रजिस्टर्स हैं. ये है रजिस्टर R1, ये है रजिस्टर लेट से R1 की जगह ए बी नाम ले लेते हैं, ए, और ये है बी. और इन रजिस्टर्स के लिए मेरे पास तीन कंट्रोल सिग्नल्स हैं. तीन कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या हैं? सी, दिस इज लोड, this is increment, and this is clear. Similarly, this is load, increment, and clear. These are the three instructions, control signals available. And this is my bus. Here it is going to bus and it is coming from bus. Now there are two ways in which I can design my instruction set. So one is hardwired, which we have already seen. अब हार्डवायर्ड अगर ये होता तो लोड से पहले कुछ गेट्स लगाता मैं, जैसे कि मैंने T0 प्लस T0 डॉट आर बार प्लस फिर T2 डॉट समथिंग प्लस T3 डॉट समथिंग, इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बना के आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी है. बट माइक्रो प्रोग्राम्ड में हमें वो सारा हार्डवायर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, लेट से एक कंट्रोल वर्ड लेंगे, कंट्रोल वर्ड. ठीक है, इस कंट्रोल वर्ड के अंदर हमने क्या किया, इसको बोला ए लोड, इसको बोला ए इंक्रीमेंट, इसको बोला ए क्लियर, देन बी लोड, बी इंक्रीमेंट, बी क्लियर. Now whenever you want to load this, so you have connected this with this like this. Increment is connected with this, and similarly this clear is connected with this, and this is how you will connect the load of this. So load of this is connected like this, increment and clear directly. No extra gates are required in this. So let's say you want to load A and you want to load B simultaneously. Okay, so what I am trying to say is we don't need any extra gates here. We have just directly connected our control signals with our register. Okay, so not register but this is control word, control word. ठीक है, तो अब लेट से मुझे A लोड करना है एंड बी लोड करना है साइमल्टेनियसली. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 रखूँगा, यहाँ पे 1 रखूँगा और बाकी सबको 0 रख दूँगा. ठीक है, तो अब इसको मैं एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ. यहाँ पे 100 और ये मेरी कंट्रोल मेमोरी है. दिस इज़ नॉट रैम, this is control memory, और you can also write control memory ROM. ये हमारी control memory ROM है, जिसके अंदर इस तरह की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन सेव होंगी. फॉर एग्जाम्पल you want to clear A and clear B. So to clear A what you need to do is 0 0 1 and clear B is 0 0 1. So इसको भी हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया 0 0 1 0 0 1. और इसी तरह से जितने भी इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमने वो सारे के सारे कंट्रोल मेमोरी में स्टोर कर लिए. जब भी हमें कोई फंक्शन, हमारा कोई फंक्शन हमें अप्लाई करना है, तो व्हाट वी डू इज वी लोड आवर कंट्रोल वर्ड विद दैट पर्टिकुलर कंट्रोल मेमोरी. ओके, एंड देन द एप्लीकेबल सिग्नल्स विल बी अप्लाइड टू दैट रजिस्टर. ओके, and we can do this simultaneously. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्लो ज़रूर है लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये फ्लेक्सिबल हो गया है. अब फ्लेक्सिबल कैसे हो गया है, वी जस्ट नीड टू चेंज द कंट्रोल वर्ड इन ऑर्डर टू डू सम अदर टास्क. ओके, लेट्स से आई वॉन्ट टू डू सम अदर टास्क, then I need to only change the control word. For example, I want to load B only and I don't want to do anything else. केवल B को लोड करना है. So I just need to change this control word from this to
this. Okay, this will be 0 because this is 1, b load is 1 and everything else is 0. So this 1 will be given to this and b will be loaded and everything else will remain silent. Okay, so now you see we have flexibility here, बिकॉज ऑफ विच हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं फ्रॉम दीज 6 बिट्स ओनली. सी, I have only taken example of 2 registers and we have 3 control signal for each register. For that we need 6 bits. From these 6 bits only we can generate 2 to the power 6, that is 64 tasks. Okay, from 6 bits only we can generate maximum of 64 different types of task. Okay, whereas अगर इसका मैं हार्डवेयर बनाऊं 64 टास्क के लिए अलग, तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा. ऑब्वियसली वो फास्ट होगा लेकिन वो बहुत बड़ा बन जाएगा. अब ये स्लो क्यों है उसको भी देखिए. क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें कंट्रोल मेमोरी से इस पूरे वर्ड को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके अंदर टाइम लगेगा. पहले हमें सर्च करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें इसको यहाँ से रीड करके अपने कंट्रोल वर्ड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है. ओके, सो सी दिस, वी हैव, लेट्स से आई वांट टू ट्रांसफ़र द कंटेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम बी टू ए. अब अगर कंट्रोल सिग्नल हमारे पास हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, बट देन वी हैव टू ट्रांसफ़र द सिग्नल फ्रॉम बी टू ए. तो उसके लिए हमें यहाँ पे, आपको याद होगा हमारे पास यहाँ पे एक मक्स था जिसके अंदर यहाँ पे 3 सेलेक्ट लाइंस थी, S0, S1, S2. अब अगर इसकी सेलेक्ट लाइन 0 है और इसकी सेलेक्ट लाइन 1 है, सो आई हैव टू गिव 0, 0, 1 in order to activate this register so that the content of B will be placed onto the bus. What I am saying is, आपको याद होगा यहाँ पे हमारे पास एक मक्स था और इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर 3 सेलेक्ट लाइंस थी. वाई? बिकॉज वी हैड मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स हियर एज वेल एज मेमोरी. तो मेमोरी का नंबर था S7. ओके, या फिर हमारे पास एड्रेस रजिस्टर था, डेटा रजिस्टर था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, कंट्रोल टेम्परेरी रजिस्टर था, एक्यूमुलेटर था. वी हैव लॉट ऑफ अदर डिफरेंट रजिस्टर्स अवेलेबल इन दैट आर्किटेक्चर. तो मान लेते हैं कि इस ए को एक्टिवेट करने के लिए सेलेक्ट लाइन है 0, बी को एक्टिवेट करने के लिए 1. तो यहाँ पे 0, 0, 1 जब मैं दूंगा तो इससे क्या होगा, इस बी का कंटेंट हमारी इस बस पे आ जाएगा. और जब ये बस पे आ गया तो इस बस पे आने के बाद मुझे केवल ए के लोड को एक्टिवेट करना है. तो बी के कंटेंट को बस पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ कंडीशन. मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं ये हमें बस के लिए कंट्रोल सिग्नल चाहिए. तो बस के लिए कंट्रोल सिग्नल इज 0, 0, 1. बिकॉज ऑफ दिस 0, 0, 1 द कंटेंट ऑफ बी विल बी प्लेस्ड. बी का जो भी कंटेंट होगा वो हमारे पास इस बस पे आ जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू एवरीथिंग एल्स हियर. लेकिन एवरीथिंग एल्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लोड ऑफ ए एक्टिवेट करेंगे. तो लोड ऑफ ए को हम यहाँ पे 1 कर देंगे और बाकी सबको हम 0 रखेंगे. तो वो क्या होगा, इससे जो बी का कंटेंट है वो ए में पहुँच जाएगा. और आपको याद होगा कि हमें एक कंटेंट को, एक रजिस्टर के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में पहुंचाने के लिए वहाँ पे 2 साइकिल्स और उसका पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन करना पड़ता था हार्डवायर्ड में. कि T0 में हम क्या करेंगे, पहले एड्रेस ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे एड्रेस, उस एड्रेस ऑफ मेमोरी से वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एंड देन प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन हियर ऑल्सो. यहाँ पे हमने लिख के भी दिया था आपको ये भी कि ये सारा काम होता था टू ट्रांसफ़र द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू 1 रजिस्टर. लेकिन यहाँ पे इसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को लोड करने से ये काम हो जा रहा है. तो दिस इज फ्लेक्सिबल. सो नाउ यू कैन सी हियर कंट्रोल functions are implemented in software.
जो कि हमारा कंट्रोल वर्ड है वो एक बिट्स की स्ट्रिंग है एक तरह से, और वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड है. रिलेटिवली कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड स्लो. ये मैं आपको बता चुका हूं व्हाई इट इज स्लो. Because we need to load the control word from control memory. Each microprogram consists of a set of micro instructions. Why micro instructions? क्योंकि माइक्रो इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोग्राम है हमारे पास. देखिए माइक्रो प्रोग्राम क्या है, वी हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम ए टू बी, और लेट्स से आई वॉन्ट टू ऐड टू नंबर्स ए प्लस बी. ओके, तो ए एक रजिस्टर है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, बी एक रजिस्टर है उसके अंदर कुछ कंटेंट है. पहले मुझे इनका एडिशन करना है और फिर इनका एडिशन करके कहीं और डेटा स्टोर करना है. तो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन वन साइकिल. ये हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं. बाय डिफॉल्ट वन साइकिल में, वन क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन. बट देन इन सम क्वेश्चंस इट इज आल्सो गिवन दैट कि एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन वन क्लॉक साइकिल से ज़्यादा ले सकती है, और अगर वन माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल से ज़्यादा लेंगी तो उस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर हमें क्या करना है. Relatively flexible because any changes in micro operation sequence need to change only in control memory. तो हमारी कंट्रोल मेमोरी के अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं, उसको हम लोड करेंगे कंट्रोल वर्ड के अंदर और हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी. सो इट इज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल. इफेक्टिव फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल एंड इंस्ट्रक्शन. तो आपने देखा कि सिर्फ 6 बिट से भी हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बना पा रहे थे, और अगर हम ज़्यादा बिट्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बना पाएंगे. इम्प्लीमेंटेड इन CISC प्रोसेसर. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट CISC प्रोसेसर में हम माइक्रो प्रोग्राम यूज़ करते हैं, वेर एज RISC के अंदर हम हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं. ओके, see the address sequencer will update next CAR. CAR is control address register. Control address register. Now why it is required? See this. Let's say हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है. दिस इज वन इंस्ट्रक्शन एंड आई हैव टोल्ड यू वन इंस्ट्रक्शन इज डिवाइड इनटू मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशन. तो लेट्स से हमारे पास इसके लिए A, B और C ये माइक्रो ऑपरेशंस हैं, माइक्रो operations. Okay, so now after running this micro operation we have to go to the next micro operation, then we have to go to the next micro operation, and it is also possible that we have to jump here directly D, E and F. We have to jump from C to F. So what we need is we need next address part. जैसे लिंक लिस्ट में होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू है लिंक लिस्ट एक नोड के अंदर, हमें दूसरी नोड पे जाना है तो नेक्स्ट एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का. इसी तरह से हमारे पास एक माइक्रो ऑपरेशन से दूसरे माइक्रो ऑपरेशन में जाना है, और अगर वो सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑपरेशन का जो प्रोग्राम काउंटर होगा उसको सिंपल इंक्रीमेंट कर देंगे. बट देन अगर हमें जंप करना होगा तो सिर्फ इंक्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, तो हमें नेक्स्ट एड्रेस को लोड करना पड़ेगा, और उसको लोड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर. सो इंक्रीमेंटिंग कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, और इंक्रीमेंट करने के बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं. और ये कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांचिंग हो सकता है कि C से हमें F पे जंप करना है इफ सम कंडीशन इज ट्रू, और C से हमें लेट्स से Z पे जंप करना है इफ सम कंडीशन इज नॉट ट्रू. ठीक है, ये हो गया कंडीशनल. और अनकंडीशनल ये हुआ कि अगर कुछ भी कंडीशन ट्रू, कोई भी कंडीशन नहीं है, सो वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंस. सो दिस इज लेट्स से कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग. माइक्रो प्रोग्राम रूटीन कॉल, हमें रूटीन कॉल करने पड़ सकते हैं. रूटीन इज नथिंग बट जैसे C प्रोग्रामिंग में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, दैट इज ओनली रूटीन कॉल्स. मैपिंग ऑपकोड बिट्स टू कंट्रोल मेमोरी एड्रेस. ऑपकोड बिट्स, मैं इसकी मैपिंग को मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई विल टीच दैट थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. सो व्हाट आई मीन इज,
हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन का ये फॉर्मेट होता है जिसके अंदर एक एफ है जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रो ऑपरेशन और फंक्शनल फील्ड कि कौन सा फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, कि ए को लोड करना है, बी को लोड करना है, या ए से बी में ट्रांसफ़र करना है, या ए को क्लियर करना है, बी को क्लियर करना है, जो भी हमें फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज एफ. दिस सी डी इज कंडीशन. अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हमें करना कुछ है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ और करना है, ए और हमें अनकंडीशनल जंप करना है, तो कंडीशनल फील्ड है ये. तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा हमारे पास एक था स्टेटस वर्ड प्रोग्राम, स्टेटस वर्ड PSW, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फ्लैग्स थे, जैसे ज़ीरो फ्लैग था, कैरी फ्लैग था, या हमारे पास में और साइन फ्लैग था. तो इफ नंबर इज नेगेटिव देन वी आर डूइंग समथिंग. इफ नंबर इज इफ some calculation is generating carry, then we have to do something. If zero, then we have to do something. So these type of condition may be used to use our branching. So this conditional is nothing but this type of checking flags, and for that what we need is one decoder. Okay, so what we do is we give some bits here, let's say this bits, and it will have the output. So 3 bits in input, we will have 8 outputs, and on the basis of these outputs we do some task here. And this next field is nothing but next micro instruction address field. That is what I have said कि अगर हमें A से B पे जाना है, B से C पे जाना है, या C से F पे जाना है, तो if this condition is true we have to jump at this address, and not true then we have to do something else. And this next address is connected with micro program counter. हमारे पास एक ओरिजिनल प्रोग्राम काउंटर है, उस ओरिजिनल प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या स्टोर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस. दैट इज लेट्स से हमें A+B करना था, A+B, और उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया उसको R×2 करना है. सो दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, दिस इज इंस्ट्रक्शन 2. तो इंस्ट्रक्शन 2 का एड्रेस कहाँ पे होगा, प्रोग्राम काउंटर में, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है. लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के अंडर हमारे पास बहुत सारी माइक्रो ऑपरेशंस हैं. तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर A, B, C, D, तो A से B पे, B से C पे, C से D पे, या C से Z पे जाना है, इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस पे होगा, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर के पास. इस पे ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन का है और इसके पास में हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस का नेक्स्ट एड्रेस है. सो दिस इज द बिट्स रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट एड्रेस. ओके, when I will give you some examples of the questions, it will be clear more. Okay.